डिस्क्लेमर 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 ये वीडियो का मोटिव किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि सभी को फैक्ट्स के साथ जानकारी देना है। हमारा संविधान मुझे इस बात की स्वतंत्रता देता है। इस चैनल का मोटिव किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करना नहीं है, बल्कि सभी को जानकारी देना है। हुई 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 वास्तविकता के साथ जागो। इस शराफत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। तो अभी हमारा सेकंड पॉइंट है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अपने फैमिली और नॉन बिलीवर्स को लेकर जो ईमान नहीं लाता है उससे रिलेटेड कई सारी क्या चीजें होती है। सो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे में। तो भाई बात दरअसल ऐसी है, जो क्रिश्चियनिटी पे ईमान नहीं लाता है तो सबसे पहला पॉइंट, आपको उनको जान से मार देना है। यू हैव टू किल हिम स्लैश किल हर। देखना नहीं है, इन द फैक्ट आपको वर्सेस पढ़ के एक्सप्लेन करा देता हूँ। Deuteronomy chapter number 13 verse number 6 to 18 onwards. If your very own brother, your son or daughter, or your wife you love, your closest friend secretly antagonize you, saying, "Let us go and worship the other gods, the gods that you neither your ancestor have known, the God of the people around you, whether far or near, from the one end of the land to the other. You do not yield them to listen to them. Show them no pity, do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in the putting them to death, then the hands of all the people. Stole them, stone them to death, because they have tried to turn away from your Lord your God, whom you brought out of the Egypt, out of the land of the slavery. Then all the Israelites will be here and be afraid, and no one among you will be do such a evil thing again. तो मतलब कि सिंपल सा फंडा है भाई क्रिश्चियनिटी में कि अगर कोई आपके मजहब पे ईमान नहीं लाता है और आपके फैमिली मेंबर्स में से ही अगर कोई काफिर बन जाता है कि खुदा पे ईमान नहीं लाता है या फिर किसी दूसरे मजहब के खुदा पे ईमान ला लेता है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी जान से मार देना है। और जान से मारने की आपकी टेक्निक होंगी, आपको उनको पत्थर फेंक फेंक कर जान से मारना है। ओके मेरा verse number 12 onwards. If you hear, if said about the one of the towns your Lord your God is giving you in to live in them, then the troublemaker have the arise among you, have led the people of their town straying, arise among you have the people of their town astray, saying, "Let us go and worship the other gods, the gods you have not known." Then you must be inquire the probe and the investigate it thoroughly. And if it is a true, it has been proved that these disabled things that been among you, you must be certainly put to sword to all the people living in the town. You must destroy it completely, both it the people and the livestock. You people that gather the plunder or the into the town or the public square and completely burn down all the plunders, as to whom the offering to your Lord your God. The town is to be remained a ruin forever, never to be rebuilt. Really, I'm so sorry to तो interrupt you in between. We have a comment. I have to just address this one so that अगर मेरे भाई I am right का एक कमेंट आया, कहते कि ओ गोमट्रियो मेरे को नहीं समझ आया क्या कहते, कहते पहले अपना जात पात मिटाओ फिर बात करना क्रिश्चियनिटी पर। धोटी आप जंगली लो आईक्यू लोग हो, तुम सिविक सेंस सीखो पहले ब्रो। I would request you to please jump onto the stream yet so that we can discuss about the Christianity if you are a Christian, so that आप हमें expose कर सकें। और हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की बुक्स के साथ। तो अगर हमारा लो आईक्यू है तो आके आप साबित कर दो। ब्रॉली बैठा है हमारे साथ, एक एक्स क्रिश्चियन एली बैठी हैं, तो आप आ जाएं और हमें एक्सपोज कर दें। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, प्लीज गो ऑन। जी काफिर भाई, अगर इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कबूतरबाजी करने हुए इंसान, अगर कबूतरबाजी नहीं करनी है और अगर दम है तो आ जाओ यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में, हमें आके एक्सपोज कर दो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसमें लो आईक्यू है
और कौन हाई आईक्यू के साथ पैदा हुआ है। सो बैक टू द टॉपिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में अगर आपके खुद के फैमिली मेंबर्स अगर ईमान से दूर हो जाते हैं, उनमें काफिरत आ जाती है, तो आपको उन्हें जान से मार देना है। चाहे वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, आपको उन्हें जान से मार देना है, पत्थर फेंक फेंक कर, वल्लाह हबीबी। सेकंड चीज, अगर आपके पास में अगर कोई ये आके कहे, और जिस तरीके से ये क्रिश्चियंस आजकल हमें तबलीग छेड़ते हैं कि हमें यीशु को मान लो, हमारे प्यारे यीशु को मान लो, हमारे प्यारे यीशु को 3 कील ठोक कर हमारे प्यारे यीशु को जान से मार दिया गया, तो तबलीग कोई करने आता है तो उसके साथ साथ उसके पूरे सोसाइटी को जला के मार डालो। क्या कहता है? सोसाइटी को जला के मार डालो। तो दिस इज द थिंकिंग टुवर्ड्स द नॉन बिलीवर एंड काफिर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कहती है जान से मार दो, जान से मार दो, छोड़ना नहीं। कई सिमिलर चीजें देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। ओके, और हाँ, वेरी वेल, आपको शॉर्ट में और एक्सप्लेन कराता हूँ। दिस इज एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 20। Whoever sacrificed to any god other than the Lord must be destroyed। मतलब अगर कोई भी इंसान इस मजहब के आसमानी खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत करता है, उसे जान से मार डालो। ये अरे कमांडमेंट है। वाह वाह वाह। This- Is it the New काफिर भाई, Testament, Rolly? I'm so sorry to interrupt you again. ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो सेम देखो देखो, मैं आपको अभी मैंने वाह वाह क्यों बोला, क्योंकि एक हमारी हदीस आती है, मन बगदलु दीनो फक्तलु। उसका मतलब यही है कि जो अपने दीन से फिरजे कत्ल कर दो। पापा तो कौन निकला? क्रिश्चियनिटी वाले निकले। बाद में है मूल्य तो, इस्लाम तो बाद में आ रहा है। इसलिए तो काफिर भाई, मैं कभी भी नबी की ऐसी हरकतों को मैं कभी इतना गलत नहीं मानता हूँ जितना इनको गलत मानता हूँ, क्योंकि नबी ने सारी जहालत, सारी की सारी अपने जंगे फसले फसाद यही से सीखी है। नबी ने कहीं और से नहीं सीखी है। नबी ने जंगे फसले फसाद और ये सारी चीजें जहालत भरी यही से सीखी है नबी ने। नबी तो यही कहता है जी। ओके, और ये देखिए, Deuteronomy chapter number 17, verse number 2 onwards. If a man or a woman living among you in a town of the towns the Lord give you is found doing evil in the eyes of your lords, your God, in a violator of his covenant, or the contrary to the my command has worshipped the other gods, bowing down to them, the sun, moon, or the stars in the sky, and has been the proud in attention, you must be investigated thoroughly. If it is true, it has been proved, then this is a desirable things had been done in Israel. Take then the man or a woman who has been done this evil deed in your city, get and stone them the person to the death. On the testimony of the 2 or the 3 witness with the person is to be put death, but one is not to be put death, or the testimony of the only one witness. The hands of the witness must be the first to put death the person to death, and the hands of the all the people you must be purged the evil among you. अगर कोई तुम्हें दूसरे खुदा के बारे में इबादत करने को कहे, या फिर कोई तुम्हें दूसरे खुदा की इबादत करते हुए मिल भी जाए, उसे डायरेक्ट फिनिश फिनिश हिम, उसे डायरेक्ट कत्ल कर डालो। सरतन से जुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिश्चियनिटी में यही है, पापा है तो इस्लाम का, इस्लाम के नबी का पापा है ये मजहब। और एक और चीज, काफिर भाई आपने ये भी देखा होगा, और दर्शकों आपने काफिर भाई से ये भी सुना होगा, जो कुरान है हम काफिरों को बहुत गालियां दिया करा करती है, और दूसरे मजहबी लोगों को बहुत गालियां देती है। तो क्रिश्चियनिटी इससे कम नहीं है। इस्लाम में आपको बस गधा, सुअर, बन बेअकल वो कहा जाता है, बट आप जी आपको दिखाते हैं एक और नई चीज कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। ये है एक्सोडस का चैप्टर नंबर 34 वर्स नंबर 15 to 17 onwards. Be careful not to make a treaty with those who live in the land where they prostitute themselves to their god and the sacrifice to them, and they will be invite you to eat their sacrifices, and they will be your
choose some of your daughters as your wife and son of your to those daughters prostitute themselves to their god. They will be lead you to your sons to do the same. Do not make any idols. मतलब कि सीधी सीधी बात है, दूसरे मजहब के लोग अपने खुदा की इबादत करते हैं तो वो अपने खुदा के साथ में प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। हाय हाय हाय। तो आपको मिलेंगी काफिर भाई ऐसी प्यारी प्यारी आयतें, आपको कहीं भी क्रिश्चियन भाई इस्लाम में मिली है आपको इस्लाम ऐसी है? तो सॉफ्ट निकला। इस्लाम कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। अब मुल्लो आज तुमसे प्यार को यार, क्या बात है, तुम्हारा पापा बड़ा कंजर कंबर कंजर्फ निकला। जी काफिर भाई, इनका मजहब तो कहता है कि अगर कोई दूसरे खुदा की इबादत करता है उसे डायरेक्ट उड़ा दो डायरेक्ट। और इतनी प्यारी प्यारी बातें कही हुई है, जहाँ पे उड़ा ना पाओ तो उन्हें गालियां दो। कैसी गालियां दी जा रही है? लेविटिकस चैप्टर नंबर 20, the Lord says to the Moses, say to the Israelites, any Israelites or any foreigner residing in Israel who sacrifice any of his children to the Molech is put to death. They, the members of the community, are to be stone him. I myself will be set the face against him and will cut off him from his people by sacrificing children to the Molech. If the members of the community close their eyes and the man sacrifices one of his child to the Molech, they will be failed to put to death him. I myself will be set face against him, and his family will be cut off from the people together at the following, and him prostitution themselves to Molech. एक एग्जाम्पल नहीं, आपको एक और एग्जाम्पल है कि अगर आप इस आसमानी किताब के खुदा को छोड़ के किसी और के खुदा की इबादत करते हैं तो ये किताब कहती है कि आप वहां पे भाई प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं। नॉट अ प्योर लव लैंग्वेज, प्योरली अ हार्श लैंग्वेज, सिंपली प्रोस्टिट्यूशन। जो कि शायद से किसी और इस आसमानी खुदा की अम्मा ने शायद से किया था, कि वर्जिन अम्मा के बारे में शायद से जो बातें हो रही थी यहाँ पे। अगेन दिस इज द थिंग। और एक मिनट, हाँ एक बार एक आखिरी चीज कि ये खुदा मजहब दूसरों जो काफिरों के बारे में क्या कहता है। अब देखिए ये क्या कहता है। ड्यूटरोनी चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 16 to 21 onwards. Be careful, or you will be enticed to turn away, worshipping the other gods and bow down to them. Then the Lord anger will be burns against you. He will be shut up the heavens, so it will be not rain. The ground will be yield not to be produced. You will be soon perished from the good the land the Lord is giving you. Fix their worms of the mine in your hearts and the mine. Tie them as a symbol on your hands and the blind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about when you must be sit at a home and when you were walk alone on the road. You lie down, you will get up. Write down on your door frames of your houses and your gates, so that your days and the days of your children may be in the land of the Lord, so to give him your ancestry, as many the days in the heavens and the earth above the earth. तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि दूसरे मजहब के लोगों को प्रोस्टिट्यूट कहो, उनके खुदा के साथ में जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसे प्रोस्टिट्यूशन कहो, उन्हें जाके जान से मारो, काफिरों को कत्ल करो, उन्हें जान से मार डालो। अगर तुम्हारे खुद के घर के मजहब, खुद के घर के इंसान काफिर बन जाए तो उन्हें जान से मार डालो। ये सारी चीजें ड्यूटरोनी की चैप्टर नंबर 11 के वर्स नंबर 16 से 21 में खुदा क्या कह रहा है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को तबलीग करो। कब कब तबलीग करो? जब तुम सो के उठो, जब तुम सोने जाओ, जब तुम बाहर जाओ, जब तुम अपने एक प्राइवेट स्पेस में बैठे हो, जब तुम अपने बच्चों के साथ में बैठे हो, जब तुम गैदरिंग में बैठे हो, और अपने दीवार पे कीले ठुकवा दो, अपने डोर स्टेप पे मतलब अपने दरवाजे पे ठुकवा दो कि ये नफरती भरे आयतें हर जगह सिखाओ। वल्लाह हबीबी। तो काफिर भाई आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर और एक्स्ट्रा नहीं दिख रही है आपको? ये एक्स्ट्रा ही दिख रही है, सिमिलर तो नहीं। आज तो मेरे को मुल्लों से प्यार हो गया है। सही बताऊं तो
जी काफिर यहाँ भाई, जो मैं एक्स्ट्रा आपसे लिखा एक है चीज यार, पूछना चीज चाहता हूँ। जोड़ रहा है। अच्छा, मैं जी मैं आप आपसे लोग ये कंटिन्यू करना। एक कोई अरुण करके पीछे जुड़े हुए हैं भाई, अगर आप क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है प्लीज स्ट्रीम छोड़ दें। हम अभी नॉन नॉन क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम से बात नहीं करें, प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे को पता है आप कौन है। प्लीज रिक्वेस्ट Ali, if you have something to add on it, I would love to hear that. Because मेरे को काफिर मजा आ भाई, रहा है भाई। जी नो, आपसे एक ये सवाल था। जो बोला एक है वो बस सब एक ठीक है, सवाल। वो सब ठीक है, हम उसके साथ हैं, या नो, ही इज करेक्ट, एब्सोल्युटली, इट्स वी नेवर बीन, हमें कुछ बताने नहीं देगा इसके बारे में, हमें सिर्फ जो अच्छे वर्स है उसके बारे में, अच्छे आयत है उसके बारे में बोल दिया गया है। तो जब हम बड़े हो गए, हम पढ़ने की कोशिश किया, और अपने मानसिकता से, अपने कहानी से, अपने आवाज से कहानी सुन लिया, तो बड़ा बड़ा अजीब की तरफ से हमने ये देखा कि ये देखिए हमारे वास्ते, हमारे मानसिकता ये हिंदुस्तान की मानसिकता से नहीं है जुड़ा है। तो अब मैंने उनको छोड़ दिया, लेकिन ये ठीक बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं। That's तो very काफिर भाई, drama. आपसे आपसे ये सवाल होता मेरा कि आपने इस्लाम हम्म। में कुरान और हदीसों में कि ये चीजें पढ़ी है कि अगर तुम्हारे खुद के वालिद या तुम्हारी खुद की अम्मी, तुम्हारे खुद के भाई या तुम्हारे खुद की बहनें अगर इस्लाम से अलग हो जाते हैं तो उन्हें जान से मार डालो, उन्हें ये तबलीग Yes, करो कि अगर ये ये तो है। मन बदलू दीनो फक्तलू की एक हदीस आती है जिसमें कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने दीन से फिर जाए उसको कत्ल कर दो। दैट इज ट्रू। बट वो जो बेटी को बेचने वाला था ना, वो दैट इज माइंड ब्लोइंग ट्रू, टू बी ऑनेस्ट। क्रिश्चियनिटी कहती है कि आप अपनी बेटी को, बच्ची को बेच सकते हो। भाई हद होगी है यार, ये नहीं इस्लाम के अंदर है, ये नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, या फिर मेरी नजर से तो नहीं गुजरा है अभी तक। और काफिर भाई, मैं एक चीज देखा था कि इस्लाम में, एक मैंने हदीस देखा था कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। ये और कुरान की आयत है। ऐसा हुआ। हाँ, तो काफिर भाई एक और चीज थी कि इस्लाम में मैंने देखा हूँ कि काफिरों को गधा बोला गया हुआ है, कुत्ता बोला गया हुआ है, जाहिल बोला गया हुआ है। नजस पर मैंने नजस बोला हुआ है, कुत्ता बोला हुआ है, बहुत कुछ बोला हुआ है। लिहाजा आपने जो बताया जी वो पर नहीं बोला हुआ। जी क्या कुरान में ऐसी बातें अपने को देखने को मिलती है कि आपको कहा गया है कि आप अपने खुदाओं के साथ में प्रोस्टिट्यूट करते हो, जो कि नॉन इस्लामिक है, अपने खुदाओं के साथ में प्रोस्टिट्यूशन करते हैं? क्या ये लिखा हुआ है कहीं पे? इवन दो इतना लिखा हुआ है कि तुम अपने खुदाओं को तुम अपने सच्चे खुदाओं को गाली मत दो, ताकि सॉरी, तुम लोगों के झूठे खुदाओं को गाली ना दो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली ना दे। तो दूसरों के खुदाओं को गाली देने के लिए तो मना किया है साहब। बेसिक इसमें भी इख्तलाफ है क्योंकि वो अपने खुदा को सच्चा बता रहे हैं, वो खुद गाली दे के बता रहे हैं कि दूसरों के झूठे खुदा हैं, पर झूठे खुदा होना इज नॉट इक्वल्स टू प्रोस्टिट्यूशन। सो दैट इज वेरी ट्रू भाई। जी काफिर भाई, आपको कंफर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि इस पॉइंट में भी क्रिश्चियनिटी ने एक स्टेप ऐड कर लिया है गंदगी में, कि वो इस्लाम की तरह इतनी गंदगी नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि तुम दूसरों के खुदा को गाली ना दो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली ना दे। पर यहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी का खुदा खुद गाली दे रहा है, खुद बोल रहा है कि दूसरे जो है वो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को छोड़ो, खुदा खुद गाली दे रहा है। कैसा मजहब है, कैसा मजहब है! तो सो ट्रू चलिए भाई। इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोरालिटी, जस्टिस, जेनोसाइड्स एंड माले गनीमत। बड़ा ही हाय हाय फेवरेट हाय। टॉपिक है। चलिए इसमें आगे मैं बढ़ते स्टार्ट हैं। करता हूँ। इस पे एक मिनट जी जी ब्रोली, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं माले गनीमत का ना एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, व्हाट इस्लाम सेज अबाउट माले गनीमत एंड ऑल स्टफ। तो इस्लाम क्या कहता है ना माले गनीमत से की नज़र से, माले गनीमत इस्लाम की नज़र में वो होती है जो आप जंग से उठा के ले आते हो, बीट उनका पैसा, बीट लड़कियां, या फिर कोई भी मर्द हजरात जो कि कम उम्र का है, जो कि जंग में नहीं आया था। हालांकि बच्चों को भी मारने की बात की गई है कई मर्तबा, बच्चों को भी कत्ल करने का फरमान जारी है इस्लाम की हदीसों के अंदर।
बट मैं कहता हूँ कि जो माले गनीमत होती है इस्लामिक की, वो होती है जंग से लाई हुई बूटी, अनफाल भी कहते हैं हम उसे अरबिक में। तो वो होती है इस्लामिक माले गनीमत। जैसे कि हमारे पास सूरह अनफाल की पूरी एक आयत है, वो पूरा माले गनीमत के ऊपर ही है, उसे हम सूरह लूटमार भी कहते हैं। तो वो सारा लूटमार का खजाना जो है सूरह अनफाल में छुपा हुआ है। उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 5 आती है, जहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि आप जब हरम के महीने बीत जाए, काफिर को जहां मिलो वहां कत्ल कर दो। तो ये होती है इस्लामिक माले गनीमत। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी थ्रस्टी टू नो व्हाट इज रिटन इन बाइबल। तो ब्रोली, बिफोर वी गो अहेड, आई जस्ट वांट टू नो कि वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में फर्क क्या है। क्रिस एली, अगर आप मेरे को थोड़ा सा क्लियर करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, सो दैट वी कैन टॉक ऑन दिस। Okay, so ओल्ड टेस्टमेंट यहूदी के लोग हैं जो 3000 साल पहले लिखा गया। So I'm going to just share the screen with you. Share it with you. And we'll go here. Can you see the Bible here? Yeah, I can see. Okay, Oh, so sorry. the Bible, Thank you. just give me a Yeah. minute. I'm going to get my book, okay? Just give me a minute here. One second. Okay. भाई ब्रोली बहुत कुछ सिखा दिया यार आज। मेरे को हजम नहीं होगा, रात को नींद नहीं आएगी आज। नहीं काफिर, आज का मेरा मोटिव है कि तुमको मैं आज इस्लाम को क्रिश्चियनिटी से अच्छा साबित करके जाऊंगा। मैं आज का मेरा मोटिव है ये। भाई तुम्हारा मोटिव हाथ काफी हद तक सही होता दिख रहा है मुझे। No, sorry, I can't find it. Okay. So this is the book. This is the Old Testament and New Testament. The Old Testament is written, मतलब यहूदी का है, यहूदी के लोग ने लिखा हुआ है, और ये मानते हैं कि ये जो 5 पहले बुक हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस और नंबर्स एंड ड्यूटोनॉमी, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है, ये जो नबी मूसा ने दिया है। जो नबी मूसा साइनाई डेजर्ट में थे, और he had taken the Jews out from the Egypt slavery and they remained in the desert for 40 years. तो वो साइनाई के डेजर्ट में जो था, वो जबल मूसा में ऊपर गया, वो बोलता है उसको, एंड भगवान ने, ऊपर वाला ने उसको, अल्लाह ने उसको दिया ये किताब। सो ये तीनों जो दिया है, बाद में ये सब लिखा गया है, ओके, उसके नाम से। ये सब उनके नबी है, यहूदी का नबी है, ये उनके कहावत से लिखा हुआ है, लेकिन ये सब यहूदी का है। जो ओल्ड टेस्टमेंट उसको बोलता है, उनके भाषा में, यहूदी के भाषा में उसको बोलता है तोरा। तोरा को ये इनकी किताब है। हाँ, so then afterwards, about 1,000 years later, they broke off. In 900 BC, 900 BC में उनका राज्य को टूट गया, and they became many other small राज्य बन गया। And finally, in the first century AD, यीशु का जन्म हुआ। उसके बाद वो उसका मृत्यु हुआ, उनको मरवा दिया, और रोम के साम्राज्य ने उनको हटा दिया 135 AD पर। उन सब यहूदी को उधर से हटा दिया, और बाद में वही स्थान जो है उसको सीरिया फिलिस्तिया बोल देंगे, क्योंकि सीरिया और ये जो इज़राइल एक ही जगह था, और एक ही जगह होने के कारण उसको सीरिया फिलिस्तिया बना दिया। फिलिस्तिया का मतलब उसकी भाषा में कि वो फॉरेनर्स है। द वर्ड फिलिस्तीन comes from the word Philistine, means foreigners, so they call this place foreign to get against the Jews. So when they got against the Jews, after that क्रिश्चियनिटी, ये जो यहूदी था जो लड़ रहे थे रोम के साम्राज्य के खिलाफ, उन्होंने इकट्ठे होके बाद में उन्होंने नया पंथ शुरू किया, और ये यहूदी की पंथ है। बाद में उसको क्रिश्चियन ईसाई के नाम से जाना जाता है। 332 में 332 में 323 में ये नया पंथ शुरू किया। तो यहूदी का ही है, उन्होंने यहूदी का किताब इस्तेमाल किया, और उसके किताब से
और कोई चैप्टर जुड़ लिया, और ये चैप्टर जो है इसको बोलता है न्यू टेस्टामेंट। मतलब क्योंकि ये जो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन उसके क्या बोलता है, कंपेनियंस उसको बोलता है। जैसे इस्लाम में जो मुसलमान है, मोहम्मद है, नबी मोहम्मद, उनके कंपेनियन होता है, वैसे ही यीशु का कंपेनियन होता है। तो इसके पहला 4 चैप्टर जो है वो यीशु ये कंपेनियन के चैप्टर उसको बोलते हैं अपोस्टल्स। अपोस्टल्स अंग्रेजी में, तो उनका चैप्टर है, उनके लिखा हुआ है, उनके कहानी से यीशु का कहानी बता दिया गया है। और ये जो चौथा 5वां चैप्टर है जो उसको बोलते हैं एक्स। एक्स मतलब दिस इज द हिस्ट्री। तो आप इस्लाम में आपके इतिहास जो तफसीर से लिखा हुआ है या सीरा अल रसूल से लिखा हुआ है, ये सीरा अल रसूल के नाम से ईसाई के इतिहास एक्स में लिखा है। और बाद में ये सब जो है लिखा है रोमन्स, कोरिंथियंस, गलेशियंस, सब कुछ ये जो है ये सब पॉल ने लिखा है, जो यीशु को कभी देखा नहीं, तो उनके हिसाब से और दूसरे के हिसाब से ये लिखा हुआ है। और ये ईसाई के पंथ जो है पॉल के मानसिकता से बना दिया गया है, पॉल और उसके जो बाद में आया, और ये रोम के साम्राज्य ने लिखा, उनके सबके एक चिट्ठी को इकट्ठे करके उनके ये बाइबल में रखा, बोला हाँ नहीं ये आपका बाइबल है, ये ऊपर वाला से आया है और ये यीशु के दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये यीशु ने कुछ लिखा नहीं। लेकिन एक चीज समझना है कि ये सब लोग यहूदी है, पूरा का पूरा यहूदी है, ठीक है। Okay, तो so मतलब what I have understand so far, Ali, कि जो एक्सोडस ये वाले जो हैं, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट हैं, इन लोगों ने जीसस को देखा है एंड देन ओनली दे हैव रिटन द बुक्स, नो राइट? दे और ये नो जो नो 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 ये जीसस यीशु को कभी देखा नहीं। इधर का लोग कोई यीशु को कभी देखा नहीं। ये तो 3000 साल पहला हुआ। जीसस तो यीशु तो 2000 साल पहला का कहानी है। ये तो 3000 साल के कहानी है, ठीक है। ये तो 3000 साल के है, उन्होंने कभी जीसस का नाम सुना ही नहीं, यीशु का नाम ओके सुना ही नहीं। तो ये बिल्कुल ओल्ड टेस्टामेंट, ये यहूदी का द किंगडम ऑफ इजराइल, एंड ये लोग को जो यहूदी बोलता है उसको आज बोलता है द रिपब्लिक ऑफ इजराइल। दैट दिस इज देम, दिस इज द ओरिजिनल 3000 इयर्स ओल्ड। बाद में ये लोग ने यहूदी लोग ने ईसाई के पंथ को बना दिया, और ये इनका न्यू टेस्टामेंट is what they call today Christianity. So when you have Christianity, it's the Old Testament, but it comes out of the values of the Old Testament also. You understand? okay, Because I it understand. follows the same values. It doesn't change the values that much. It just नाम बदल जाता है, मानसिकता वही है। Okay? That छवि बदल जाता है लेकिन मानसिकता वही है। This is why we say Judeo-Christian. हम लोग बोलते हैं उसको कि the Judeo-Christian values, a Judeo-Christian mentality. Okay, and this is the values are the same. It's just it changed because this is there are 1000 years of difference between both. So one is 3000 years old, one is 2000. So obviously the society has evolved since then. The society is not the same. ओके, तो आजकल की सोसाइटी से 2000 साल पहला बहुत फर्क है। तो इसका फर्क 1000 साल है, तो इसलिए हम देख नहीं सकते वही आइनक से। जैसे अभी इस्लाम जो आए, कुरान जो आए, वो अभी 632 AD से आया है। ओके, मोहम्मद का जन्म हुआ ने शुरुआत किया 622 AD, 632 में उसका, और 622 में शुरुआत हुआ यात्रिब में, जो आप आजकल बोलता है उसको मदीना। सो now this is 600 years later than the New Testament. तो फर्क हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में फर्क हुआ ना, तो ऐसा ही फर्क हो जाता है। बदलते हमारे संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज बदलते हैं, तो you will have differences, but it follows basically the same values, same मानसिकता, it's the same values, just put in another box. दूसरा का बॉक्स डाला, दूसरा का रैपिंग पेपर डाला उसके ऊपर, और मानसिकता वही है। So that's why we when we say the Bible, we give
the Bible contains the Old and the New Testament. अगर आप कहाँ भी बाइबल देखने वाले हैं, you're not only going to see New Testament, you're not only going to see Old Testament, you're going to see Old and the New. But if you go to the Jews, अगर आप जूस की तरफ जाते हैं, आप they ask them what is your book, they will say the Torah, but their Torah does not consider the New Testament, because the New Testament comes उसके बाद में, 1000 साल बाद में, और वो न्यू टेस्टामेंट को मानते नहीं, because Jesus उनके यहूदी था, उनके खिलाफ गया, so they don't agree with it. They don't agree with the New Testament. आजकल के ज़माने में वो मानते हैं, मतलब हाँ, yeah, you know, they need the help of the Christians, but they don't recognize the New Testament. They don't recognize the New Testament. Ideologically, they don't recognize. उसको मानते नहीं. So that is the difference between the Old and the New.